She's the second in command in NCW. पोर्टल के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ अपराध पर जागरूकता लाने का काम आयोग करती है। आयोग 15 जुलाई 2021 से महिलाओं के खिलाफ अपराध पर जागरूकता विषय पर खुली प्रश्नोत्तरी शुरू किया है, जिसके माध्यम से पोस्ट एक्ट की जानकारी दी जाती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में समानता समावेशित करना है। अंबेडकर के विचारों को, जिन्होंने इस राष्ट्र को बराबर महिलाओं की सिफारिश करने का काम किए, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किए, था कि यह देश तभी सुंदर होगा जब महिलाएं भेदभाव रहित एक शिक्षा प्राप्त करेगी और सफलतापूर्वक दोनों की भागीदारी से जब राष्ट्र का निर्माण होगा तभी यह देश सुंदर होगा। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पर जग चलता है। अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं की गोद में पलता है। जय महिला शक्ति, जय हिंद, जय भारत। The senior advocate of the Supreme Court of India with a distinguished practice in diverse area, Dr. Pinky Anand. She is the recipient of French National Order of Merit by the President of French Republic. And I think the energy that comes out of association is the fact that you try to portray something. So going back, I was involved with the Sexual Harassment Act, and the NCW was considering making recommendations. I actually sat through it. So one of my first thoughts is, how does a government, how does a nation, how does a globe define something and set out what is black and white, and possibly even set out what is grey, because there is a lot of grey in this act. Vishal rightly pointed out, you don't know where the line is. The line is for us to draw, the line is for us to perceive. But the point is, we all grew up, frankly, personally I have been fairly decently alright. I haven't faced too much. A few Julies here and statements here and some speaking somewhere outside on the road. Those are the kind of broad comments, but let's not go there. It's really not about oneself, though I believe it is not about us also, because you actually come out with this. But one of the statements I'll share with you. So when I was doing my legal balance program for Doordarshan as lawyer and as a senior lawyer, somebody would come and say, you're looking very nice. And I'm not seeking compliments by the way, but this was some of the comments. So I said, what about what I spoke? Was that good? Yeah, that was nice too. So, and somebody else would come out and say that your colleagues, friends, lawyers wanted their daughters to work with me. And they were very sure that they didn't want their daughters to work with, let us say, male colleagues. Now, there was this apprehension that there is sexual harassment and innuendos, other statements. And I quite understand it to some extent. But we don't want to understand it anymore. In the sense, we want to set down the tone so that it is a neutral situation, so whether it's a female boss or a male boss or in that capacity, so you don't really change the surface. So Vishaka guidelines, incidentally, between you and me, when this came around, 1997 is when the judgment came, and we'd of course gone way down globalization, and the world had changed. Women had entered the corporate world, women had entered the organized sector, women were always there in the organized sector, and rightly or wrongly, there's a larger percentage in the organized sector than in the organized sector. But the point was that we had CEDAW, we had the international services coming across,
And to some extent, of course, there was a major discrimination, and women were not considered either fit enough to be in the workplace or were considered as caregivers. That is, I believe, the appropriate word today, rather than housekeepers, so to say. So caregivers may be there. But the idea was that you wanted women out in the open. We wanted in India that we have equal contribution of women as assets in the system. And I believe, in fact, the contribution of women on the economic side, most surveys are showing that wherever you have diversity, wherever you have inclusion, wherever you have women also there, you actually have a larger and a better performance. I don't know what the percentage was offered, but there's a substantial evidence, whether it's Deloitte report or whether it's a recent Odgers report. Most of them indicate to that extent that there is a position such as this. So Vishaka guidelines also, between you and me, is one of the few judgments of the Supreme Court at that time. Now it's increasing sometimes, but where policies were actively laid down. So the whole basis was there's a vacuum and we can fill it in. Incidentally, that's a conundrum between the judiciary and the executive also at times. Is it your domain to do this or not? But that's another chapter, we'll leave it for another day. So Vishaka guidelines came in the backdrop of CEDAW. We adopted international concepts and we brought about the guidelines. So 1997, so let's pause here for a moment. Why did we need a law? What Supreme Court says is good enough. But again, not that there was a gap directly, but indirectly there was. Because sometimes the judgment is followed to the core and sometimes it is not. So that is what I was saying, that the state in 2013, it took 16 years for the law to come into place after the guidelines. But the idea was that the state needed to define, and it is always important to have a definition which is predictable to the extent that it is defined, the contours are defined as much as possible, considering the line issue always is there. But that is defined so that you have a structure in place. Because that structure then can be followed for all, whether it is HR, whether it is NCW, whether it is NCPCR, whether it is any other Supreme Court committee. Incidentally, on a fault line, I don't know how much of this is quoted, but it doesn't matter. The Supreme Court itself set up its internal committee after several years on the Sexual Harassment Act. And aside from that, not that there is no sexual harassment in the courts, whether this side or that side of the bench, as we say, the bar and bench. So there is a tremendous amount. Okay. So, oh my. Right, the files fall down. Sorry for that. So this incident was demonstrated on the skit. And this lady, boy, what is he done? Look at this, he's abused me, he's sexually attacked me. So a colleague, who was a maid, said, but he was going to court and maybe it happened accidentally. So, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आगे लाई है। ये जो पॉश एक्ट है 1997 विशाखा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने करी थी, उसके बाद 2013 में एक्ट बना। उसके तहत महिलाओं को पूरा अपना साधन देना, महिलाओं को जागृति देना, महिलाओं को सुविधा देना, महिलाओं को कानून देना, ताकि उनको जो वर्क प्लेस है जहाँ पर वो काम करते हैं और वो हर जगह है, वो आगे बढ़ के पूरे देश में अपनी काबिलियत कर सके और उनको पूरा सपोर्ट करें। पॉश एक्ट एक तरीका है जो महिलाओं को ये पूरी स्पेस देता है और उनको एक इकोनॉमिक एसेट बनाकर, आज का युग एम्पावरमेंट का युग है, अभी इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बाद में हम निकलेंगे, तो अभी तक ये रहता था कि महिलाएं जो है वो आगे इसलिए नहीं बढ़ सकती क्योंकि उनको रोका जाता है। एक तो रोकने का तरीका हो गया, दूसरा ये है कि उनको वो जो सपोर्ट सिस्टम है वहाँ पर तंग किया जाता है। तो ये विषय सेक्शुअल हरासमेंट का है जो महिलाएं हर जगह फेस करती हैं और उस कारण से अपनी प्रगति पूरा नहीं कर पाती, पूरा योगदान नहीं दे पाती, पूरी अपनी काबिलियत को आगे नहीं ला सकती, पूरे देश में अपनी इकोनॉमिक एसेट नहीं बना सकती। तो इस संदर्भ में ऐसे कैंपेन्स जो न केवल एक्ट को दुनिया के आगे लाते हैं, महिलाओं को जागरूक करते हैं, पुरुषों को जागरूक करते हैं, सिस्टम को करते हैं, पर ऐसे भी पूरी डिस्कशन करना ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि क्या सही है और क्या गलत है, और जो गलत है वो समाज में किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। इनडायरेक्ट हरासमेंट अल्टीमेटली आजकल वर्चुअल वर्ल्ड है और ये सर्वेज में पता भी लगाया गया है कि जो वर्चुअल हरासमेंट है वो शायद डबल फिजिकल हरासमेंट है। तो इनडायरेक्ट हरासमेंट शब्दों का प्रयोग करना, फोटो को पोस्टिंग करना, बातचीत इस प्रकार से करना जिसमें डायरेक्ट नहीं भी हो लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ करना,
इनोवेंडोज जो हम बोलते हैं, इनडायरेक्ट हैरेसमेंट एक्चुअली इनोवेंडोज के तौर पे ज़्यादा आती है, जहाँ पर हिंट किया जाता है और हिंट सेक्सुअल कॉनोटेशन होता है, जो हर महिला शायद अप्रोप्रिएटली समझती है। ये जो कानून है ये महिला के समझने का एक चीज़ है कि जो महिला परसीव करती है, तभी ये एक्ट अग्रीड पर्सन के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है। जो परसेप्शन है वही चीज़ अगर अलग कॉन्टेक्स्ट में कही जाए तो शायद वो सेक्सुअल मूवमेंट ना हो, और वही चीज़ अलग तरीके से कही जाए, जैसे कोई अगर हाथ शेक करता है तो कई चीज़ों में वो नहीं होता, लेकिन जिस प्रकार से आप लंबा हाथ कीजिए, कोई पुरुष किसी को महिला को देखता है, कहाँ देखता है, कैसे देखता है, शरीर के किस अंग को देखता है और कैसे कोई चीज़ होती है, वो एक जानकारी के लिए होती है। ये सब चीज़ें इनडायरेक्ट है, इसमें सब चीज़ एक कहें तो परसेप्शन का ज़्यादा रोल है, ना कि केवल करने का। अब कई चीज़ों में क्लियर है, अगर आप कोई ऐसी बॉडी में हाथ लगाए, पुरुष हाथ लगाता है तो अपने सेक्सुअल हैरेसमेंट हो ही गया। लेकिन अगर आप देखें, अब देखने का ढंग या टच किसी और बॉडी पार्ट को करे, लेकिन आपका मेंटल जो है वो ये चीज़ है कि किसी को ज़्यादा तंग करे, तो महिला अपना प्रयोग जगह लगा रखा है। आप सही कह रहे हैं, हमारे सिस्टम में ये कमियां अभी बहुत चल रही है, ना केवल महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में पर कई कॉन्टेक्स्ट में, चाहे पॉक्सो है, चाहे क्रिमिनल केसेस हैं, महिलाओं के दूसरे केसेस हैं। और इस समय में जैसे पॉश की जो एक्ट है, जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट है वर्क प्लेस का, उसमें भी इंटरनल कमेटी भी होती है, तो पूरा एक प्रोसेस जो है, इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोगों को और इसको गाइडलाइन को सुरक्षित करना है और पूरे अपने सिस्टम को फास्ट फॉरवर्ड हर चीज़ में करना है। मेरा ये मानना है, कानून में प्रावधान करना एक बात है, पॉलिसी को प्रावधान करना एक बात है, लेकिन अगर कोई न्याय ही नहीं मिलेगा तो फिर उस न्याय का फायदा है। Ma'am, since this initiative, No Means No is gaining support in urban and city setup, what would be your proposition regarding its reach and benefit to the rural India? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जो कानून है, कोई भी कानून है, जब आप किसी वर्ग को देते हैं अपने प्रयोग के लिए, यू गिव इट टू समबडी टू यूटिलाइज, इट शुड बी एज पर योर विश। आप किसी को कंपेल नहीं करना चाहिए कि ज़रूर करिए, आप एक सिस्टम का प्रोविजन दे रहे हैं कि यू कैन टेक इट अप, बट देयर इज नो लॉ दैट सेज इफ आई हैव बीन सेक्सुअली हरास्ड एंड आई डोंट वांट टू टेक अप एक्शन, आई मस्ट टेक इट अप। इट इज़ अप टू मी। मुझे पूरे प्रोटेक्शन होनी चाहिए, मेरे पास पूरे प्रोविजन होने चाहिए। अब अगर आप मान के चलिए तो रूरल जो एरियाज़ में है वहाँ कुछ अलग है। बाय द वे, अब ये मत समझिए कि रूरल एरियाज़ में ज़्यादा होता है और अर्बन में कम होता है, ये उल्टी बात है। बल्कि मेरे हिसाब से अर्बन में ज़्यादा होता है, क्योंकि विलेजेस में, रूरल एरियाज़ में एक कम्युनिटी लिविंग का कॉन्सेप्ट है और वहाँ प्रोटेक्शन है। नॉट दैट वहाँ नहीं होता है, हाँ रेप केसेस भी होते हैं, हमारी और चीज़ें भी होती है, बट रूरल एरिया में मेरा मानना है कि कम्युनिटी स्ट्रॉन्गर है, इसलिए शायद कुछ प्रोटेक्शन ज़्यादा है। वही कहते हैं कि मेरी बेटी के साथ किसी ने हाथ भी उठाया, आँख भी उठाई, तो वहीं पर पंचायत बैठ जाएगी और वैसे एक्शन लेगी। इसलिए प्रोविजन है, रूरल एरियाज़ के लिए भी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, लेकिन यूटिलाइजेशन करना वो महिलाओं के ऊपर है कि कितना करना चाहते हैं। ये विक्टिम शेमिंग का प्रॉब्लम है एक्चुअली। महिला सोचती है कि अगर मैं कंप्लेंट करूँगी तो मेरे खिलाफ एक गलत निगाह से लोग सोचेंगे, ये गलत औरत है, ऐसे करती है, उसको काम पे नहीं रखेंगे, उसको आगे नहीं बुलाएंगे। तो इसलिए विक्टिम शेमिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमको आउट करना है और आगे बढ़ना है। एक्ट जेंडर न्यूट्रल नहीं है, एक्ट सिर्फ महिलाओं के सेक्शन के लिए, लेकिन देखिए सेक्शुअल हैरेसमेंट ऐसी चीज़ जो किसी के साथ भी हो सकती है, और ये मानते हैं कि किसी फीमेल टू मेल भी हो सकती है, सेक्स सेक्सुअल भी हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो कंपनीज आजकल है जेंडर न्यूट्रल पॉलिसी पे काम कर रही है, जिसमें वो अपने कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर प्रोटेक्शन सबको देते हैं। लेकिन अगर हम एक्ट की बात करें तो एक्ट अभी सिर्फ महिलाओं के लिए